ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ عطیہ اپنے دولہا کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، مگر وہ زبردستی خود کو جگائے ہوئے تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا، گھڑی کی ٹک ٹک اور کبھی کبھار دور کہیں کتے کی بھونکنے کی آواز سنائی دیتی تو وہ سہم جاتی۔ بھاری بھرکم عروسی لباس میں وہ اب تنگ آ رہی تھی۔ دل چاہتا فوراً کوئی سادہ سا لون کا سوٹ پہن لے، مگر بس حسام الوی کمرے میں آ جائیں تو فوراً چینج کر لوں گی۔ حسام کے خیال سے ہی اس کا دل زور سے دھڑکا تو ایسے لگا جیسے اس کے ہاتھوں سے ہی باہر نکل جائے گا۔ اس حسین خیال کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں انجانا سا خوف بھی جھلک رہا تھا۔ وہ ہر آہٹ پر چونک سی جاتی جیسے کوئی دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو۔ دراصل اس کا یہ خوف بے وجہ نہیں تھا، بلکہ اجمل کی حرکات نے اسے اس حال تک پہنچا دیا تھا کہ اس کے دماغ میں ڈر بیٹھ گیا تھا۔ اجمل حسام کا چھوٹا بھائی اور اب اس کا دیور تھا۔ شروع سے ہی وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ شادی کے دنوں میں جب بھی اسے موقع ملا عطیہ کے آس پاس منڈلانے لگتا۔ اس کی آنکھوں میں عجب وحشت سی تھی جو اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے کر دیتی۔ لیکن آج تو اجمل نے حد کر دی۔ جب سب دلہن کے کمرے سے جا چکے اور وہ کمرے میں اکیلی رہ گئی، تب اجمل بغیر دستک دیے کمرے میں آ دھمکا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ جو عطیہ کو شدید ناگوار لگی۔ ایک دلہن ہونے کے ناطے وہ اتنی مضطرب ہو گئی تھی کہ شوہر کے بجائے جوان جہان دیور اس کے کمرے میں دندناتا پھر رہا تھا، لہٰذا وہ ایک دم الرٹ ہو کر بیٹھ گئی۔ تبھی اجمل بغیر کسی شرم و لحاظ کے اس کے بیڈ کے قریب آیا تو اس نے فوراً سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ یہ لیں بھابی، پانی پئیں، پیاس تو شدید لگی ہوگی۔ آخری جملہ انتہائی بھاری لہجے سے کہا گیا تو اسے شدید برا لگا، مگر چپ کر گئی۔ لیکن اس کی آنکھوں میں شیطانی جذبات دیکھ کر وہ نظریں چرانے لگی۔ لیجیے نا۔ اس نے گلاس عطیہ کی طرف بڑھایا تو عطیہ شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ چاروں ناچار اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر گلاس لینے کی کوشش کی تو ایک دم اجمل نے اس کی انگلیوں کو چھوا تو عطیہ نے بمشق گلاس کو پکڑا اور ہاتھ ایک جھٹکے سے پیچھے کر لیا۔ اجمل اس کا یہ رد عمل دیکھ کر بدمزہ سا ہوا، لیکن وہ مسلسل ڈھٹائی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے نگلنا چاہتا ہو۔ عطیہ اس طرابی کیفیت میں انگلیاں مروڑنے لگی۔ اس کی نظر بھٹک کر دروازے پر جاتی کہ شاید حسام آ جائے، مگر وہ تو جیسے راستہ ہی بھول گیا تھا۔ اتنے میں اجمل آہستہ سے بولا، بھابی آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، ماں قسم قیامت ہے قیامت۔ اس کی گھٹیا جملوں پر عطیہ کا دل کیا کہ اسے وہ سنائے کہ اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں، لیکن وہ برداشت کر گئی۔ اجمل کا یہ انداز اسے اندر تک لرزا گیا۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا کہ کوئی معجزہ ہو اور حسام جلد از جلد کمرے میں آ جائیں۔ اجمل چند لمحے اور کھڑا رہا، پھر اچانک بولا، آپ کو ان گلاب کی پتیوں کے ساتھ بستر پر تنہا دیکھ کر میرے دل پر تو چھریاں ہی چل گئی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب بیٹھا تو عطیہ کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ وہ غصے اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات سے کانپنے لگی۔ اس نے نظریں اٹھا کر پہلی بار سخت لہجے میں کہا، اجمل آپ پلیز باہر چلے جائیں، مجھے اکیلا رہنے دیں۔ اجمل نے تھوڑا چونک کر اسے دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے ہنستا ہوا بولا، اچھا بھابی جی، جیسا آپ کہیں۔ خبیث سے مسکراہٹ چہرے پر سجاتے وہ بولا، لیکن جاتے جاتے اس کی نظروں میں جو پیغام تھا وہ عطیہ کو روح تک بے چین کر گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی عطیہ نے سکون کا سانس لیا، لیکن ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اس سب کی توقع سہاگ رات پر بالکل نہیں تھی۔ اسے امید تھی کہ یہ رات اس کی زندگی کی خاص ترین رات ہوگی، لیکن اب وہ ایک عجیب خوف اور بے یقینی میں گھری ہوئی تھی۔ حسام سے اس کی ابھی تک کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ سرد مزاج اور بے حد خاموش طبیعت کا مالک تھا۔ نکاح کے بعد اسے پتا چلا تھا کہ حسام کو اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ عطیہ نے کئی بار کوشش کی کہ اس سے بات کرے، اسے دوستی کی کوئی صورت نکالے، لیکن حسام ہر بار نظر انداز کر کے گزر جاتا۔ اور پھر اس کی رخصتی ہوئی اور وہ اپنا گاؤں چھوڑ کر
उसकी बीवी बनकर पूरे हकूक के साथ शहर आई, जहां वो अब उसके कमरे में सरापा इंतजार थी, मगर शायद उसे परवाह भी नहीं थी। आप इतने बेजार हैं मुझसे? दरवाजे को तकते हुए एक आंसू उसके गाल पर बहता चला गया। जब हसाम के इंतजार में उसका बदन थक हार गया तो उसने बेड के सिरहाने से टेक लगा ली और दिल ही दिल में दुआ की कि ए अल्लाह, आज की रात खैर से गुजर जाए। वक्त गुजरता जा रहा था। दरवाजा बंद था, लेकिन अतिया को ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर है। वो बार बार चौंक जाती, सहम जाती, कभी घड़ी की सुइयों को देखती, कभी दरवाजे को। वो शदीद डरी हुई थी। अजमल की नजरों ने उसके अंदर एक अनजाना सा खौफ भर दिया था। वो नहीं जानती थी कि हसाम कब आएगा और आएगा भी या नहीं, लेकिन वो ये जरूर जानती थी कि वो उस अजनबी माहौल में तन्हा थी और मुकम्मल तौर पर गैर महफूज भी। उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। कमरे की खामोशी में घड़ी की सुइयां एक दूसरे का पीछा करते हुए जैसे अतिया के दिल की धड़कन गिन रही थी। बेड पर बैठे बैठे उसकी कमर अकड़ चुकी थी और आंखों में नींद का शाइबा तक नहीं था। सुहाग रात, जिसका ख्वाब हर लड़की आंखों में सजाती है, वो उसके लिए बदतरीन अजियत का रूप धार चुकी थी। परेशानी ने उसे अलग घेर रखा था। अचानक दरवाजे का हैंडल हिला और अतिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सांस रोके दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा आहिस्ता से खुला और रोशनी की एक लकीर कमरे में दाखिल हुई। उस रोशनी में जब उसे साया नजर आया तो अतिया ने दिल थाम कर आंखें बंद कर ली और चीख मारने ही लगी थी कि अचानक उसे दरवाजे के बाहर अपने ससुर की आवाज सुनाई दी। तुम यहां क्या कर रहे हो अजमल? आवाज में हैरत भी थी और सख्ती भी। अतिया एकदम ठुठक गई और तेजी से बिस्तर से उतरकर दरवाजे के करीब आई। वो अजमल से मुखातिब थे। उसने कान दरवाजे से लगा दिए और सांस रोककर सुनने लगी। चंद लम्हे यूं ही गुजरे तो वो खुद को ना रोक सकी और आहिस्ता आहिस्ता चलती दरवाजा पूरा खोलकर बाहर निकल आई। सुसर जी उसे यूं बाहर आता देखकर चौंके और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गोया हुए। अरे बेटी, तुम क्यों बाहर आई? सब खैरियत तो है? अतिया के होंठ कांपे। वो कुछ कहना चाहती थी कि उसकी नजर अचानक अजमल पर पड़ी। अजमल का चेहरा शर्मिंदगी और नदामत से झुका हुआ था, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसके अंदर का चोर बेनकाब हो चुका हो, लेकिन वो खामोश खड़ा था। उसकी आंखें फर्श पर जमी हुई थी। सुसर जी ने अजमल को घूर कर देखा और फिर इंतहाई सख्त लहजे में बोले, तुम यहां खड़े क्या कर रहे हो? जाओ अपने कमरे में, आराम करो। मगर अजमल टस से मस ना हुआ तो वो अतिया की तरफ मुड़े। हसाम कहाँ है बहू? अतिया ने झिझकते हुए एकदम कहा, वो तो अभी तक आए ही नहीं। ये सुनकर सुसर हैरत से उसे घूरने लगे। क्या कह रही हो बहू? हसाम अभी तक कमरे में नहीं आया? अतिया ने नफी में सर हिलाया तो सुसर जी की आंखों में शदीद परेशानी उभर आई। तुम जाओ अंदर, मैं उसे देखता हूं। ये कहकर वो पलटे और तेजी से सीढ़ियां उतरने लगे। अतिया कमरे की तरफ मुड़ी ही थी कि उसकी निगाह अजमल पर पड़ी, जिसके चेहरे पर छाई खबासत को देखकर उसकी रूह तक कांप गई। अजमल का चेहरा किसी भूखे शिकारी की तरह नजर आ रहा था। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। अतिया के दिल को कुछ होने लगा। वो तेजी से पलटी और भागते हुए कमरे में दाखिल हुई और जोर से दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने दरवाजे से टेक लगा ली, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब क्या था वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन एक बात वाज़ेह थी कि अजमल की मौजूदगी उसके लिए खतरे से खाली नहीं। बाहर खड़ा अजमल दरवाजा बंद होते ही जैसे झुंझुला गया। उसके चेहरे पर खफकी सी उतर आई, जैसे शिकार हाथ से निकल गया हो। उसने गुस्से से दरवाजे की तरफ देखा और फिर मुट्ठियां भेंचकर वहीं खड़ा रहा। उसने अंदर जाने का एक मौका खो दिया था, लेकिन वो इतनी आसानी से जान छोड़ने वालों में से नहीं था। जबकि अतिया दरवाजा बंद करके वहीं दरवाजे के पास बैठ गई। उसने चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। वो जिस कर्ब से गुजर रही थी उसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं था। हसाम का यूं उसे छोड़ देना, अजमल की नजरें और सुहाग रात में उसका तन्हा होना, सब कुछ उसे तोड़ फोड़ रहा था। दिल चाह रहा था वो चीख चीख कर सबको बता दे कि वो किस अजियत में है,
लेकिन फिर माशरे की जंजीरें उसे खामोश कर देती। कहीं मुझे वापस ना जाना पड़ जाए। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, वो सहम कर सोचने लगी। वैसे भी पीछे जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि उसके अपने वालिदैन फौत हो चुके थे और वो अपनी खाला के यहाँ बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रही थी। जब उसके तायाबू को इन हालात का पता चला तो उन्होंने बाकायदा उसकी खाला के घर जाकर हसाम के लिए उसका रिश्ता मांगा। उसकी ताई अम्मी का इंतकाल कुछ माह पहले ही हुआ था। घर में कोई खातून नहीं थी, लिहाजा तायाबू को एक माह के अंदर अंदर उसे रुखसत करवा कर ले आए, मगर हसाम की जिंदगी में शामिल ना कर पाए। उसने बेबसी से दोनों हाथ घुटनों के गिर्द लपेट लिए और माथा उन पर टिका दिया। न जाने कितनी देर यूं ही गुजर गई। आंखों से आंसू थमते ही ना थे। जहन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था कि हसाम कहाँ है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसे अपने ससुर की गुस्से से भरपूर धार सुनाई दी तो वो कांप कर खड़ी हो गई। सैयद उल्वी हसाम को तलाश करते हुए नीचे लाउंज में आए तो वहां का मंजर उनके लिए नाकाबिले यकीन था। हसाम सोफे पर बैठा था और उसके साथ एक इंतहाई मॉडर्न लड़की थी जो मुख्तसर लिबास में बेपरवाह अंदाज में बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे और वो मुसलसल हसान के कान में कुछ कह रही थी। सैयद उल्वी की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। उनके बढ़ते कदम रुक गए और सीने में एक तेज टीस उठी, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया और बुलंद आवाज में गरजे, हसान, ये क्या हो रहा है? हसान ने चौंक कर सर उठाया और लड़की ने फौरन पीछे होकर लापरवाह अंदाज में उनकी जानिब देखा। अब्बू, आपको यहां नहीं आना चाहिए, हसान ने सख्ती से कहा। मुझे यहां नहीं होना चाहिए? मैं तुम्हारा बाप हूं और ये मेरा घर है। मुझे यह सवाल पूछने का पूरा पूरा हक हासिल है कि तुम यहां क्या कर रहे हो और ये लड़की कौन है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारी बीवी कमरे में अकेली तुम्हारे इंतजार में बैठी है? शायद तुम याद नहीं रखना चाहते, लेकिन मुझे तो याद करवाना है ना, क्योंकि उस बच्ची के साथ मेरा वादा था कि मैं उसको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। लेकिन तुमने तो मुझे शर्मिंदा करवा दिया हसाम। अबू प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं? हसाम ने तंग आकर कहा। मैं ठीक बातें कर रहा हूं, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें? आज तुम्हारी सुहाग रात है और तुम इस तरह। सैयद उल्वी की आवाज गुस्से से फट पड़ी। ये लड़की कौन है? ये मेरी दोस्त सुंबुल है और आपकी जिद मानकर मैंने शादी तो कर ली। अब मजीद क्या चाहते हैं आप? अब मैं अपनी दोस्तियां तो नहीं छोड़ सकता ना? अच्छा, दोस्ती तुम्हारी बीवी से आगे हो गई है क्या? वो मेरी बीवी सिर्फ आपकी जिद की वजह से है। मेरी मर्जी के खिलाफ आपने जबरदस्ती शादी कराई और अब आप चाह रहे हैं मैं उसे अपना लूं। वो मेरे मयार की नहीं है अबू, गांव की सादा सी लड़की। मैं उससे मोहब्बत नहीं कर सकता। हसाम के इस जुमले ने अतिया के दिल को जकड़ लिया। वो अभी अभी हॉल के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि हसाम की आवाज सुनकर उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई। हसाम के साथ इंतहाई अल्ट्रा मॉडर्न लड़की खड़ी थी जो आंखों में गरूर और होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट लिए अतिया को देख रही थी। अतिया का दिल सीने में धड़कना भूल गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो कुछ ना बोल सकी। सैयद उल्वी ने अतिया को देखा, फिर हसाम की तरफ पलटे। तुम्हारी बीवी को इस घर में आए चंद घंटे भी नहीं हुए और तुम इसे ये दुख दे रहे हो कि इसकी मौजूदगी में अपनी दोस्त के साथ बैठकर रंगरलियां मना रहे हो। तुम्हें कोई शर्म है? कोई गैरत है? हसाम ने कंधे उचकाते कहा, अबू आपने जो कहा मैंने मान लिया, लेकिन इससे ज्यादा मैं अपनी जिंदगी में किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। बकवास बंद करो हसाम, सैयद उल्वी चीखते हुए बोले। तुम्हारी माँ के बाद मैंने तुम्हें अपनी जान से बढ़कर चाहा, तुम्हें इज्जत दी, तालीम दी, सब कुछ दिया। उसका ये सिला दे रहे हो मुझे? हसाम ने जैसे उनकी बातों को सुना ही नहीं। वो पलटा और लड़की की तरफ मुतवज्जो हुआ। चलो सुंबुल, हम अपने कमरे में चलते हैं। तुम कहीं नहीं जाओगे हसाम, सैयद उल्वी ने उसके रास्ते में आते कहा। हटे अब्बू, आप हद पार कर रहे हैं, हसाम ने सख्त लहजे में कहा। ये सुनकर अतिया का दिल जैसे दहल गया जब उसके ससुर के चेहरे पर एक अजीब सा तासुर उभरा
और वो अपना सीना पकड़कर झुक गए और अगले ही लम्हे जमीन पर गिर पड़े। अब्बू! हसाम चीखा। अतिया भाग कर आगे आई। ताया अब्बू! उसने उनके सीने पर हाथ रखा। उनकी सांसें तेज थी, आंखें आधी बंद हो चुकी थी। हसाम घबराकर बोला, फौरन अस्पताल ले जाना है। उसने अजमल को गाड़ी निकालने का कहा। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। अतिया भी गाड़ी में उनके साथ बैठ गई और वो सब अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। अतिया मुसलसल दुआएं कर रही थी, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके ससुर वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने अपनी बेटी की तरह उसे कबूल किया था। उनकी एक बात में शफकत थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने सैयद उल्वी को इमरजेंसी में ले गए। हसाम बाहर इंतजार कर रहा। चेहरे पर अब पछतावे के आसार नजर आ रहे थे। अतिया खामोशी से कोने में बैठ गई। उसकी नजरें मुसलसल दरवाजे पर थीं। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर बाहर निकला और उसके चेहरे के तासुरात ही सब कुछ कह गए। हम माजरत चाहते हैं, हम उन्हें नहीं बचा सके। ये अल्फाज सब पर बिजली बनकर गिरे। अतिया की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। हसाम ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। वो शख्स जो अभी चंद घंटे पहले अपनी मर्जी की दुहाई दे रहा था, अब अपने बाप के दुनिया से चले जाने पर सुन्न हो चुका था। अतिया के अंदर जैसे कुछ टूट सा गया। वो तो ताया ससुर के सहारे यहां तक आई और अब वो उसे मंजिल पर पहुंचाने से पहले ही हमेशा के लिए चले गए। तो अब किस तरह अपनी जिंदगी की उलझी ढोर सुलझाएगी? उसकी तो नींदें ही उड़ गईं। तदफीन मुकम्मल हो चुकी थी। मगरिब की अजान के साथ ही तमाम रिश्तेदार एक एक करके वापस जाने लगे। पूरे घर पर एक बार फिर सन्नाटे का राज था। उल्वी हाउस जो कभी जिंदगी से भरपूर था, अब सुनसान कब्रिस्तान जैसा था। अतिया फिर से अपने कमरे में बैठी थी, जिस कमरे को आबाद करने के लिए उसके ससुर अपनी जान से चले गए। लेकिन उनके चले जाने के बाद भी ये कमरा वैसे का वैसा ही था। खुदा जाने अब मेरा क्या होगा? वो बार बार इसी नुक्ते पर जब सोचती तो उसका सर दर्द से फटने लगता। भूख प्यास तो उसकी कब की मिट चुकी थी, लेकिन चाय की शदीद तलब हो रही थी। वो आहिस्ता से उठी, दुपट्टा ठीक किया और किचन की तरफ चल पड़ी। किचन के दरवाजे तक पहुंची, लेकिन जैसे ही कदम बढ़ाकर अंदर दाखिल हुई, सामने का मंजर देखकर ही वो सन्नाटे में आ गई। उसका शौहर हसाम, जिसके साथ उसने निकाह के बोल पढ़े थे, जिसे अपना हमसफर माना था, जिसे अभी बाप के चले जाने पर दुखी होना चाहिए था, वो इस वक्त सुंबुल को बाहों में लिए हंस रहा था। उनके दरमियान ऐसी कुर्बत थी जो किसी भी बीवी को अंदर से तोड़ देने के लिए काफी होती है। उसे शर्म भी ना आई कि उसके वालिद को इन्हीं बातों पर हार्ट अटैक आया था। वो सुंबुल के बालों में उंगलियां फेरते हुए न जाने उसके कानों में क्या सरगोशी कर रहा था कि वो चहक चहक कर हंस रही थी। अचानक उसकी नजर अतिया पर पड़ी तो उसके लबों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। वो आंखों ही आंखों में अतिया को देखने लगे, जबकि अतिया उन दोनों को एक साथ देखकर तो उसका दिल बुझ ही गया। उसका जिस्म कांपने लगा और जबान जैसे तालू से चिपक गई। हसाम ने उसकी तरफ से एकदम अपनी कमर मोड़ ली और चाय में चम्मच चलाने लगा। अतिया को समझ नहीं आ रही थी वो मुड़कर अपने कमरे में जाए या यहाँ खड़ी रहे या अपने शौहर को मुखातिब करे। अजीब कंफ्यूज सी कैफियत थी, लेकिन सुंबुल को उसके साथ चिपकता देखकर उससे रहा ना गया। जाने सुंबुल का उसके शौहर के साथ क्या ताल्लुक था वो नहीं जानती थी, लेकिन शरई लिहाज से वो उसकी बीवी थी, बात करने का हक रखती थी, जबकि सुंबुल ऐसा कोई हक ना रखने के बावजूद भी पूरे हक के साथ खड़ी थी। और उसकी इसी अदा ने अतिया को हिम्मत दिलाई और उसने आहिस्ता से लरसती हुई आवाज में हसाम को पुकारा। हसाम। हसाम ने चौंक कर पीछे देखा और जब नजर अतिया पर पड़ी तो उसके चेहरे पर बेजारी का तासुर छा गया। वो कुछ नहीं बोला, बस सवालिया नजरों से अतिया को देखने लगा। अतिया ने लबों पर जबान फेरी, हलक खुश्क हो चुका था। मैं चाय बनाने आई थी। सुंबुल ने जोर से हंसी दबाई और आंखों से जैसे कहा, बेचारी। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे हजूर क्या चाय पेश करूं? हसाम ने इतनी लापरवाही से कहा जैसे वो उसकी बीवी नहीं बल्कि घर की मुलाजमा हो। अतिया की आंखें भर आई। मेरा मतलब है मैं चाय बना रही हूं, अगर आपने पीनी है तो आपके लिए भी एक कप बना देती हूं।
ओ, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। हम शहरी लोग तुम गांव देहात के गवार लोगों की तरह चाय नहीं पीते, यहाँ कॉफी चलती है। गॉट इट। ये अल्फाज किसी खंजर से कम नहीं थे। अतिया ने सुंबुल की तरफ देखा जो अब मजीद करीब होकर हसाम के बाजू से लगी खड़ी थी। आंखों में जीत की झलक, लबों पर जहर भरी मुस्कुराहट, जैसे कह रही हो जिस ट्रॉफी के पीछे तुम आई हो वो कब की मेरी हो चुकी है। और फिर उसके पास से गुजरती हुई बाहर चली गई। अब किचन में वो और हसाम अकेले थे। अतिया ने थूक निकला, आंखों से बहते आंसू पहुंचे और लरसती आवाज में कहा, हसाम, आप क्यों मेरे साथ ऐसे हैं? मेरा कसूर क्या है? तो मेरा क्या कसूर है जो तुम्हें मेरे पल्ले बांध दिया गया? आप क्या मुझे छोड़ देंगे? वो आंखों में अंदेशे भरकर बोली। हाँ, तुम इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहो। मैं बस अब्बा के 40वें का इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद तुम्हें छोड़ दूंगा। हसाम की बात सुनकर वो लरजने लगी। अपनी कम मायगी का एहसास उसे मार डाल रहा था। हसाम, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? कौन रोकेगा मुझे? वो दुश्मन जान जब उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ तो अतिया की सांसें तेज होने लगी। वो अपना निचला होंठ मुसलसल काटने लगी। तभी हसाम ने उसे बहुत गौर से देखा। बगैर मेकअप, साफ सुथरा चेहरा और अपर लिप्स पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे मोती की तरह चमक रहे थे। वो बिलाशुबा इंतहाई हसीन थी। अगर ये दिल सुंबुल पर ना आया होता तो यकीनन उसका दिल अतिया पर मर मिटा होता। उसकी सोच की रूह भटकी तो जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। वो अतिया को देख रहा था। अतिया को उम्मीद जागी कि अचानक वो दांत कचकचाते बोला, तुम पर यकीनन मेरी सारी बात वाज़िया हो चुकी है। अब तुम्हें चाहिए कि तुम खुद ही समझदारी का मुजाहिरा करते हुए मेरा पीछा छोड़ दो और इस घर से चली जाओ। बसूरत दीगर 40वें के बाद तुम्हें मैं खुद यहां से भेज दूंगा। ये जुमले अतिया के लिए कयामत खेज थे। उसकी आंखें आंसुओं से डुबडुबा गई, सांसें मध्यम हो गई। वो कुछ बोल ना सकी, बस चुपचाप दुश्मने जान को तकती चली गई जो उसके इंतहाई करीब खड़ा था। उसकी चौड़ी छाती पर कमीज के बटन सामने से खुले थे, जिससे झांकता उसका मजबूत सीना देखकर अतिया बेख्तियार उसके सीने से जा लगी। आंसू चुपचाप उसके गालों को भिगोने लगे। इस अचानक उफ्ताद पर हसाम के हाथों के तोते उड़ गए। उसे कुछ समझ ही नहीं आई कि वो क्या करे। वो तो उसे गांव की एक आम सी देहातन लड़की समझता था, मगर वो तो उस पर हावी होती जा रही थी। हसाम का दिल पहली बार तेज तेज धड़कने लगा। हेलो, ये तुम क्या कर रही हो? पीछे हटो, वो बौखला कर बोला तो अतिया फौरन उसके सीने से हटी और 2 कदम पीछे हुई। तो वो गुर्रा कर बोला, कोशिश करो कि मेरे सामने ना आया करो, और अगर कभी सामना हो जाए तो अपनी हुदूद में रहो, वरना अतिया ने बेतासुर लहजे में पूछा। वरना तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं। 40वें से पहले ही तुम्हें तुम्हारे घर भेज सकता हूं। यह सुनकर अतिया का चेहरा सफेद हो गया, आंखें हैरत से खुल गईं। वो एक लम्हे के लिए साकित हो गई और फिर बिना कुछ कहे पीछे हट गई। उसे लगा जैसे उसके जिस्म से बिल्कुल ताकत खत्म हो गई हो। उसने आहिस्तगी से नजरें उठाकर हसाम की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अब पहले की तरह सख्ती तो नहीं थी, लेकिन अजनबियत मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई थी। लेकिन न जाने उसे क्यों एक उम्मीद सी जरूर लग गई कि जैसे हसाम बहुत जल्द उसकी तरफ पेश कदमी करेगा। इस ख्याल ने उसके अंदर एक ताकत सी भर दी और वो किचन से बाहर निकल आई। वो अपने कमरे में आई, दरवाजा बंद किया और खामोशी से बेड पर बैठ गई। उसने जानबूझकर अपने कमरे में लाइट नहीं लगाई, क्योंकि वो इस अंधेरे का फायदा उठाकर खुलकर रोना चाहती थी। उसका दिल जैसे किसी ने निचोड़ कर रख दिया था, मगर वो कमजोर लड़की नहीं थी, ना ही वो हार मानने वालों में से थी। उस रात वो देर तक अपने अंधेरे कमरे में बैठी रही, मगर दिल ही दिल में एक फैसला कर चुकी थी कि वो हसाम को पा कर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो। वो अपने शौहर को अपनी मोहब्बत और खिदमत से अपना बना कर रहेगी। अगली सुबह ही उसने अपने इरादों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया।
हसाम जब कमरे से निकला वो दरवाजे के पास ही मौजूद थी। नरम लहजे में सलाम किया और आहिस्ता से बोली, नाश्ता तैयार है, आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। हसाम ने एक सर्द निगाह उस पर डाली और बिना जवाब दिए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। अतिया ने बगैर किसी शिकवे के उसके लिए उसका पसंदीदा लच्छेदार पराठा, ऑमलेट और चाय सजा दी। मेज पर बैठते हुए हसाम ने खाने को देखकर एक लम्हा तवक्कुफ किया, मगर कुछ बोला नहीं। अतिया के लिए इतना ही काफी था कि उसने नाश्ता डट कर किया और जाते हुए 1000 का नोट टेबल पर रख गया। गोया उसकी मेहनत का एक खामोश एतराफ था। उसने वो पैसे उठाए और अपने सीने के साथ लगा लिए। वो बेहद खुश थी। वो हसाम को छुप छुप कर देखने लगी जब तक वो घर से बाहर नहीं निकल गया, मगर अब रोज का यही मामूल बन गया। अतिया दिन ब दिन हसाम की छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखने लगी। उसके कपड़े इस्त्री करके अलमारी में तरतीब से रखती, उसके जूते साफ करके बेड के नीचे दाएं तरफ रखती, क्योंकि उसे पता था हसाम वहां से ही पहनता है। चाय में चीनी का तनासब, साफ सुथरा तौलिया, यहां तक कि मोबाइल का चार्जर कहाँ रखा जाए, हर बात का ख्याल रखने लगी। मगर इस तमाम मेहनत, कुर्बानी और मोहब्बत के बावजूद हसाम उससे दूर ही रहता था, और उसकी एक बड़ी वजह सुंबुल थी। सुंबुल तो अब जैसे इस घर का एक हिस्सा बन चुकी थी। सुसर के इंतकाल के बाद तो जैसे उसे इस घर का रास्ता ही मिल गया। वो कभी हसाम से किसी यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के बहाने से मिलती, तो कभी किसी मसले के हल के लिए, तो कभी उसे पैसे चाहिए होते, और हसाम उसके आने पर खिल सा जाता। लेकिन हसाम की इस खुशी को देखकर अतिया का दिल बैठ जाता। उसे सुंबुल पर बेइंतहा गुस्सा आता कि ये किस किस्म की लड़की है जो एक बसा बसाया घर बर्बाद करने पर तुली है। अतिया के लिए यह सब कुछ बर्दाश्त करना आसान नहीं था, मगर वो चुपचाप बर्दाश्त करती रही। अपने कमरे की खिड़की से अक्सर देखती कि हसाम और सुंबुल लाउंज में साथ बैठे कह कहे लगा रहे होते। हसाम जो अतिया की मौजूदगी में एक लफ्ज भी खुश दिली से ना बोलता, सुंबुल के साथ उसके कह कहे ही ना रुकते। एक दिन अतिया ने महसूस किया कि अजमल अब उस पर इतनी तवज्जो नहीं देता, बल्कि उसकी तवज्जो का मरकज सुंबुल है, जिसने इसके दिल में शक की एक नई चिंगारी भड़का दी। दोपहर का वक्त था। हसाम ऑफिस गया हुआ था। अतिया किचन में खाना पकाकर फारिग हुई और जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसे लाइब्रेरी की तरफ से किसी की दबी दबी हंसी की आवाज आई। पहले तो उसने समझा कि शायद मुलाजमा होगी, मगर जब वो करीब गई तो लाइब्रेरी का दरवाजा अंदर से बंद देखकर उसे ताज्जुब हुआ। फिर अचानक कहकहा बुलंद हुआ तो वो चौंक उठी। अंदर अजमल और सुंबुल मौजूद थे। ये दोनों इस वक्त अंदर क्या कर रहे हैं? उसके जहन में शक पैदा हुआ, लेकिन हसाम तो ऑफिस में है, तो ये अजमल के साथ क्यों है? अजमल की हंसी और सुंबुल की मध्यम सरगोशियां उसका दिल चीरने लगी। या अल्लाह खैर, मेरे घर को किस बला के साए ने घेर रखा है? ये वो लम्हा था जब अतिया की आंखों के सामने से धुंध हटने लगी। उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आया। क्या अजमल और सुंबुल के दरमियान भी कुछ है, या ये सिर्फ इत्तफाक है? अब वो उन दोनों पर गहरी नजर रखने लगी, मगर फिर अतिया का शुबा यकीन में बदल गया जब सुंबुल हसाम की गैर मौजूदगी में घर आने लगी। वो स्पेशल अजमल से मिलने आती, मगर ऐसे वक्त का इंतखाब करती जिस वक्त हसाम घर पर मौजूद नहीं होता था। वो बिना किसी झिझक के अजमल के बेडरूम में चली जाती। दरवाजा बंद करके वो कई कई घंटे एक दूसरे के संग गुजार देते। अतिया हर रोज ये सब देख रही थी, लेकिन खामोश थी। उसके दिल में हसाम को पाने की तड़प थी, लेकिन उसके सामने एक और साजिश तैयार खड़ी थी। सुंबुल, जो बज़ाहिर हसाम की मोहब्बत थी, अंदर ही अंदर कुछ और खेल खेल रही थी। अतिया ने एक और अजीब बात भी नोट की। जब हसाम घर पर होता तो सुंबुल मुकम्मल तौर पर अजमल को नजरअंदाज कर देती, उसके करीब भी ना जाती, हत्ता कि निगाह तक ना डालती। अजमल भी उसे इग्नोर करता, मगर जैसे ही हसाम चला जाता दोनों फिर से खुलकर मिलते। अतिया का दिल बुरा होने लगा। ये लड़की उसके शौहर की आंखों में धूल झोंकते हुए मोहब्बत का नाटक उम्दगी के साथ खेल रही है। दरअसल हकीकत ये थी कि जब से सुंबुल को ये पता चला
کہ اجمل کا اپنا بزنس ہے اور ٹھیک ٹھاک کمائی ہے تو اس کے دل میں حسام کی کشش ایک دم سے کم ہو گئی، کیونکہ حسام کی نجی کمپنی میں محدود آمدنی کے ساتھ جاب تھی۔ یہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو پرکشش مواقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، اور اب اجمل اس کے لیے ایک پرکشش موقع تھا جسے وہ کسی بھی صورت گنوانا نہیں چاہ رہی تھی۔ اور یہ بات عطیہ کو جلد سمجھ آ گئی، کیونکہ ایک عورت کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ جان چکی تھی کہ سنبل کس قدر مفاد پرست اور لالچی لڑکی ہے جو دونوں بھائیوں کو الو بنا رہی ہے۔ اب اس کا دل جہاں حسام کے لیے تڑپتا تھا وہیں خوفزدہ بھی تھا کہ اگر کسی دن حسام کو سنبل کے عزائم کا پتہ چل گیا تو نہ جانے کیسا طوفان اس گھر میں برپا ہو جائے گا۔ ایک عورت دو مردوں کو پاگل بنا رہی ہے ایک ہی چھت کے نیچے بنا کسی خوف کے، تو وہ پریشان ہو جاتی۔ حسام تو اصل حقیقت سے ناآشنا تھا، لیکن اجمل تو واقف تھا، اسی لیے اسے اجمل پر شدید حیرت ہوتی کہ وہ یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ سنبل اس کے بڑے بھائی حسام کی محبوبہ ہے اور وہ اس کے لیے مخصوص جذبات رکھتا ہے۔ اگر وہ بیوی ہو کر 2 دن کے اندر اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھ گئی تھی تو وہ بھائی ہو کر اپنے بھائی کی پسندیدگی سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں کر اپنے بھائی کی محبوبہ پر اپنے جذبات لٹا رہا ہے؟ وہ جتنا اس معاملے پر سوچتی اتنا ہی الجھنے لگتی۔ کئی بار اس نے ارادہ باندھا کہ وہ اس سارے معاملے کو حسام کے سامنے لے آئے، لیکن پھر ڈر جاتی کہ حسام تو پہلے ہی اس سے بیزار رہتا ہے، کہیں وہ مزید اس سے بدظن ہی نہ ہو جائے اور اسے جیلس سمجھ کر اس کی بات مکمل طور پر رد نہ کر دے۔ خیر، وہ جو بھی سمجھے، مجھے اسے سچائی سے آگاہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا اور ایک اچھے موقع کا انتظار کرنے لگی۔ ایک رات جب حسام تھکا ہارا گھر لوٹا تو کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ آرا ترچھا صوفے پر بیٹھا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے اس نے موبائل نکالا اور مسلسل کسی کا نمبر ملائے جا رہا تھا، اور نمبر نہ ملنے کی صورت میں شدید جھنجھلا رہا تھا۔ کچن کی کھڑکی سے عطیہ حسام پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ حسام اس وقت کسے کال ملا رہا ہے۔ عطیہ نے فٹافٹ قہوہ بنایا اور اس کے پاس ہی ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، آپ قہوہ لیجئے، مجھے آپ کچھ تھکے ہوئے لگتے ہیں۔ حسام نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی، بڑی مہربانی، لیکن مجھے نہیں چاہیے۔ آج کل آپ پریشان رہتے ہیں، سب خیر تو ہے نا؟ عطیہ نے فکر مندی سے کہا، تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، سمجھی، اپنے کام سے کام رکھو۔ حسام، کیا میں واقعی اتنی غیر اہم ہوں کہ میری کوئی بات، کوئی جذبہ آپ تک نہیں پہنچتا؟ حسام نے موبائل سے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر انتہائی سختی سے بولا، تم اس گھر میں ابو کی وجہ سے لائی گئی ہو، ان کی محبت میں میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، اب وہ نہیں ہے تو تمہارے لیے نہ اس دل میں اور نہ ہی اس گھر میں کوئی جگہ ہے۔ یہ سن کر عطیہ کا دل بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جو سنبل کی بات اس کے سامنے کرنے آئی تھی، اس پر ایک لفظ بھی اسے بولا نہ گیا، اور وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر آ گئی کہ جو شخص اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں، وہ اتنی بڑی بات بھلا کیسے سنے گا، بلکہ اسے مزید چڑ جائے گا۔ لہٰذا وہ خاموش ہو گئی، لیکن سجدے میں سر رکھ کر اپنے اللہ کے آگے بہت روئی کہ خدایا تو ہی میرے شوہر کی آنکھوں کے آگے سے یہ پردہ ہٹا دے، تاکہ اسے نظر آئے کہ اس کی ناک کے نیچے اس کی محبوبہ اور اس کا چھوٹا بھائی کیا گل کھلا رہے ہیں، جنہیں نہ تو رشتوں کے تقدس کا کوئی خیال ہے اور نہ ہی انہیں کوئی احساس۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کرتی کہ سنبل اور اجمل کے درمیان جو بھی کھچڑی پک رہی ہے وہ سب کچھ اس کے شوہر حسام کے سامنے آ جائے، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے خود ہی دیکھ لے کہ وہ کس گڑھے میں اپنی وفائیں پھینک رہا ہے، جہاں کوئی قدر و قیمت نہیں، اور جس عورت پر وہ بھروسہ کر رہا ہے وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ اور اللہ نے چند دن کے اندر اندر ہی عطیہ کی یہ دعائیں قبول کر لی۔ ایک شام حسام کا موڈ کچھ بہتر تھا، وہ دوستوں سے ملنے کے لیے باہر نکلا۔ شہر کے پوش علاقے میں موجود ایک مشہور ہوٹل کا انتخاب کیا گیا۔ اس کے دوست ابھی تک نہیں آئے تھے تو وقت گزاری کے لیے اس نے کافی کا آرڈر دیا
और इर्द गिर्द नजरें दौड़ाने लगा। ये एक मामूल की मुलाकात थी, लेकिन किस्मत उसे किसी और ही सिमत ले जाना चाहती थी। चंद लम्हों बाद जब वो निगाह इधर उधर घुमा रहा था तो एक मेज पर उसकी नजरें ठहर गई। दिल की धड़कन जैसे एक लम्हे को रुक गई। वहां सामने ही एक मेज पर अजमल बैठा था और उसके सामने सुंबुल जिसने रात को फोन पर कहा था कि वो अपनी खाला के घर है, चंद दिन वहीं रहेगी और कुछ दिनों तक बात नहीं कर सकेगी क्योंकि वहां पर सिग्नल का मसला है। हसाम की आंखें फैल गईं। उसे लगा कि शायद ये उसकी आंखों का धोखा हो, शायद कुछ और हो। लेकिन जब सुंबुल ने हंसते हुए अपना चेहरा थोड़ा सा झुकाया और अजमल की किसी बात पर कहकहा लगाया तो हसाम को यकीन हो गया कि ये वही लड़की थी जिसे वो दिलो जान से चाहता था, जिसके साथ वो जिंदगी गुजारने के ख्वाब बुन चुका था। एक लम्हे के लिए वो कुर्सी से उठने लगा कि जाकर उन दोनों के सामने खड़ा हो जाए, सवाल करे, शोर मचाए, चीखे, मगर फिर वो रुक गया। अचानक उसके दिल में एक ख्याल आया। उसने मोबाइल निकाला और वहीं बैठे बैठे सुंबुल को कॉल मिलाई। वो एक ऐसे जाविये पर बैठा था जहां से सुंबुल के चेहरे के हर तासुर, हर झलक को देख सकता था। कॉल मिलने की देर थी कि सुंबुल ने फोन उठाया, स्क्रीन पर नजर डाली और जैसे ही हसाम का नाम देखा उसके चेहरे के नकूश बिगड़ गए। एक तल्ख सी नागवारी उसके चेहरे पर छा गई, जैसे किसी नापसंदीदा शख्स की कॉल आ गई हो। वो लड़की जो कल तक हसाम की एक कॉल ना आने पर नाराज हो जाती थी, मैसेज ना पढ़ने पर रो दिया करती थी, आज हसाम की 5वीं कॉल पर बेजारी से फोन उठा रही थी। बिलाखिर कॉल रिसीव हुई और हसाम के लबों से फौरी निकला, सुंबुल कहाँ हो तुम? मुझे फौरन मिलने आओ, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता, हम आज ही निकाह करते हैं। लाइन के दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर कदरे चुपते लहजे में बोली, इतनी जल्दी भी क्या है, मैं तो अभी अपनी खाला के घर हूं, कुछ दिन यहीं रहूंगी। निकाह की बात बाद में करते हैं और प्लीज अभी तंग मत करो। ये कहकर उसने फोन काट दिया। हसाम के हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। उसने एक नजर फिर सुंबुल पर जमा दी, जो अब अजमल के साथ पहले से भी ज्यादा खुशगवार मूड में बैठी थी। चेहरे पर जरा सी भी नदामत नहीं थी। हसाम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो खून के घूंट पीकर रह गया। उसकी आंखें जो मंजर देख रही थी वो उसे उम्र भर नहीं भूलना था। जिस लड़की को उसने टूट कर चाहा था वो झूठ बोलकर उसके ही भाई के साथ डेट कर रही थी। इतने में हसाम चौंका। अजमल ने कोट की जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी मखमली सुर्ख डबिया निकाली। सुर्ख डबिया देखकर हसाम का सांस रुकने लगा और दिल की धड़कनें तेज से तेज तर होने लगी। अजमल ने डिबिया खोलकर सुंबुल के सामने कर दी तो सुंबुल हैरत से चीख पड़ी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि हसाम के सारे जज्बात एकदम से सर्द पड़ गए। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही सुंबुल है जिस पर उसने अपने सारे जज्बात और सारी मोहब्बत लुटा दी। सुंबुल ने एकदम अपना हाथ अजमल के सामने कर दिया तो अजमल ने इंतहाई जोश के साथ हीरे की अंगूठी सुंबुल की उंगली में पहना दी। ये मंजर देखकर हसाम के अंदर जैसे कोई चीज टूट गई। गुस्से से उसका जिस्म कांपने लगा। मेरा अपना भाई मेरी महबूबा के साथ, और सुंबुल वो तो झूठ पर झूठ बोल रही है। अभी कहा खाला के घर है, जबकि यहां गुलछर्रे उड़ा रही है। दुख और बेयकीनी की मिली जुली कैफियत में हसाम ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके माथे पर पसीना नमूदार होने लगा। आखिरकार वो उठा, कुर्सी धकेलते हुए गुस्से से कदम उठाता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। लेकिन जो ही उन दोनों ने अपने सामने उसे खड़े देखा तो सुंबुल का चेहरा एकदम जर्द हो गया और अजमल ने गर्दन मोड़ी तो उसके होंठों पर हल्की सी कपकपाहट उभरी। हसाम खामोशी से उन्हें देखने लगा मगर कुछ बोला नहीं। अजमल कुछ बोलने ही लगा था कि हसाम एकदम पीछे हटा और बिना कुछ कहे, बिना इल्जाम दिए वहां से पलट गया। वो कदम जो मोहब्बत में बेताब होकर कभी सुंबुल के दर पर पहुंचा करते थे, आज नफरत की मोहर के साथ पीछे हट रहे थे। वो होटल से बाहर निकल आया, गाड़ी में बैठा और स्टीयरिंग व्हील पर दोनों हाथ रखकर अफसोस से सर हिलाने लगा।
میں جسے اپنا سمجھتا رہا وہ سب جھوٹ نکلا، سب جھوٹ۔ اس نے ایک زوردار مکہ سٹیئرنگ ویل پر مارا۔ دوسری جانب سنبل اور اجمل بے حد پریشان ہو گئے، تو اس کا حل اجمل نے یہ نکالا کہ ابھی اور اسی وقت نکاح کر لیا جائے۔ یہ سن کر سنبل کی آنکھیں چمکنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جسے اس نے اپنا شکار بنایا ہے وہ حسام کے مقابلے میں کافی دولت مند ہے۔ اجمل اور سنبل نے جس دن نکاح کیا تھا اس دن انہوں نے نہ صرف حسام کے جذبات کو رونق ڈالا بلکہ اس گھر کی فضا میں بھی زہر گھول دیا تھا۔ سنبل وہ عورت تھی جسے حسام محبت سمجھ بیٹھا تھا، اور اجمل وہ بھائی جس پر وہ اعتماد کرتا تھا۔ دونوں کی بے وفائی نے حسام کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، لیکن قدرت کا نظام ہے، جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو مکافات عمل اپنا رخ دکھاتا ہے۔ نکاح کے بعد چند ہی دنوں میں اجمل کا کاروبار بری طرح تباہ ہو گیا۔ وہ جو کل تک لاکھوں کے سودے کرتا تھا آج اس کی جیب خالی تھی، اس کا سارا سرمایہ ڈوب چکا تھا۔ گاہک، پارٹنر، دوست سب نے منہ موڑ لیا، اور سنبل وہ جس نے اجمل کی دولت اور حیثیت دیکھ کر اس سے رشتہ جوڑا تھا اب دن رات تانے دینے لگی۔ یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے تم سے شادی کی تھی، تم تو کہتے تھے تمہارا بزنس سیف ہے، تم ہمیشہ مجھے اچھا لائف سٹائل دو گے، اب کیا ہے تمہارے پاس؟ ناشتہ بھی مانگوں تو تمہارے چہرے پر جھنجھلاہٹ آ جاتی ہے۔ تو اجمل خاموش نظروں سے اس کی طرف تکتا رہتا، کیونکہ اس کی کسی بات کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ دن گئے جب سنبل اور اجمل 5 اسٹار ہوٹلز میں ڈنر کیا کرتے تھے، اور اب گھر میں راشن کی کمی تھی، کبھی کبھی کھانا بھی میسر نہ ہوتا۔ اجمل خاموشی سے اس کی باتیں سنتا، مگر سنبل کی زبان دن بدن زہر گھولتی جا رہی تھی۔ آخرکار اس نے عدالت میں خلا کا کیس دائر کر دیا اور چند ہی ہفتوں میں طلاق بھی لے لی۔ اب وہی سنبل جو کل تک اجمل کی محبت کا دم بھرتی تھی آج کاروباری حلقے میں ایک مالدار سیٹ کے ساتھ دکھائی دینے لگی، لیکن اس کے چہرے پر ندامت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ادھر اجمل اتنے صدمے سہنے کے بعد بیمار ہو گیا تو انسانی ہمدردی کے تحت حسام اسے گھر لے آیا، لیکن اجمل کی فطرت نہ بدلی۔ ٹھیک ہوتے ہی وہ عطیہ پر جو رشتے میں اس کی بھابھی تھی اس پر گندی نظر رکھنے لگا۔ وہ سارا دن گھر پر رہتا اور ہر وقت عطیہ کو گھورتا رہتا۔ اس صورتحال سے عطیہ بے حد پریشان رہنے لگی۔ جب حسام گھر پر نہ ہوتا تو عطیہ کا دل گھبرانے لگتا، وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، دروازہ اندر سے لاک کرنے کے باوجود ڈرتی رہتی۔ مگر عطیہ یہ سب کچھ حسام کو بتا نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حسام اب بھی صدمے میں ہے۔ سنبل کی بے وفائی کے بعد اس کا دل زخمی اور مزاج شدید چڑچڑا ہو چکا تھا۔ اسے بات کرنے کا مطلب تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ایک اور طوفان کھڑا کر دیتی۔ اس کے لیے یہ بھی کافی بڑی بات تھی کہ حسام نے ابھی تک اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ پہلے کی طرح بات بات پر اسے چھوڑنے کی بات نہیں کرتا تھا، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ چپ اس کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق کر دے گی۔ پھر ایک رات وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، حسام گہری نیند میں تھا۔ وہ نیند کی دوا کھا کر سویا تھا، کیونکہ ان دنوں اس کی نیند ڈسٹرب تھی۔ اچانک گھر کی خاموشی میں شدید چیخوں کی گونج نے اس کی آنکھ کھول دی۔ بچاؤ، چھوڑو مجھے، حسام! یہ عطیہ کی آواز تھی، کانپتی، لرزتی، ڈرتی اور مکمل طور پر اذیت میں ڈوبی۔ حسام نے آنکھیں کھولیں اور بڑبڑایا، کیا مصیبت ہے؟ کیا موت پڑ گئی ہے اسے؟ پھر اس نے غور کیا کہ یہ چیخیں عام نہیں، کسی تکلیف کا نتیجہ تھی۔ وہ جھٹ سے بستر سے اٹھا، چپل پہنے بغیر باہر نکلا۔ آواز اسٹور روم کی طرف سے آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا آواز اور بلند ہوئی۔ جب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اجمل نے عطیہ کے سر سے دوپٹہ کھینچ رکھا تھا اور اسے دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عطیہ کی حالت نڈھال تھی، مگر وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ حسام کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے جھپٹ کر اجمل پر حملہ آور ہوا۔ مکے، گھونسے، لاتیں، حسام نے جیسے برسوں کا غصہ ایک لمحے میں نکال دیا۔
اجمل زمین پر گرا اور رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ عطیہ چیخ رہی تھی، بس کریں حسام، خدا کے لیے، مار ڈالیں گے آپ اسے۔ حسام کا ہاتھ رکا۔ اس نے تیز نظروں سے عطیہ کی طرف دیکھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اسٹور روم سے باہر نکالا، دوپٹہ اس کے سر پر ڈالا اور باہر سے دروازے پر کنڈی لگا دی۔ پھر فوراً اپنے دوست انسپیکٹر رحیم کو فون کیا اور ساری بات بتائی۔ رحیم چند ہی منٹوں میں پہنچ گیا۔ سارا واقعہ سن کر اس نے اجمل کو گرفتار کر لیا۔ وہ چیختا چلاتا رہا مگر وہ اسے تھانے لے گیا، جہاں اسے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ عطیہ دیوار سے لگ کر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں صرف خوف تھا۔ اسے لگا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب وہ حسام کے لیے ایک بوجھ بن چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ حسام اسے خود نکالے، وہ عزت سے یہاں سے خود ہی چلی جائے۔ اس نے بیگ پیک کرنا شروع کر دیا۔ جب حسام اندر آیا تو اسے بیگ پیک کرتے دیکھ کر لمحہ بھر کو خاموش رہا، پھر ایک دم سے بیگ اٹھا کر دور پھینک دیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ کاش میں اپنے اور تمہارے رشتے کو دیر سے نہ پہچانتا تو اپنوں کے ہاتھوں اتنا دکھی نہ ہوتا۔ مجھے معاف کر دو عطیہ۔ عطیہ اس کے سینے سے لگ کر روتے روتے بولی، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، کبھی نہیں۔ حسام نے اس کے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر خود بھی تڑپ اٹھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، تم نے اور میں نے جتنا رونا تھا رو لیا، اب مزید اور نہیں۔ ہم بھلا کیوں ان لوگوں کے لیے روئیں جن کے دل میں ہماری کوئی قدر و منزلت ہی نہیں تھی، نہ احترام تھا نہ محبت تھی۔ اب ہمیں خوشی خوشی ایک دوسرے کے لیے جینا ہے، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ عطیہ نے بھیگی پلکوں سے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور حسام کے چہرے کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگی، جہاں اب وفا اور محبت پورے یقین کے ساتھ لکھی ہوئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔